Welcome to this new chapter. So we are going to discuss now the new chapter, that is system of particles and rotational motion. System of particles and rotational motion. This is unit number 6 of your syllabus. Now before starting this chapter, now let us come to know some basic definitions. Number 1, what is a particle? पार्टिकल जो होता है, पार्टिकल एक ऑब्जेक्ट होता है. इट इज एन ऑब्जेक्ट हैविंग फाइनाइट मास. पार्टिकल जो है ये एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको फाइनाइट मास होगा. ऑब्जेक्ट हैविंग फाइनाइट मास, लेकिन कंडीशन साथ ही, बट नेग्लिजिबल साइज एंड स्ट्रक्चर. वो ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट को फाइनाइट मास होगा, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट का साइज और स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं क्या? पार्टिकल. वी कैन से एन ऑब्जेक्ट हैविंग फाइनाइट मास बट नेग्लिजिबल साइज एंड स्ट्रक्चर, दैट्स कॉल्ड एज ए पार्टिकल. ठीक है. इसके बाद सिस्टम. सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है collection of large number of particles. Collection of large number of particles. Large number of particles. बेटा देखो, सपोज यहां पर हमारे पास एक पार्टिकल है, इसका मास है m1, दूसरा पार्टिकल है, इसका मास है m2, तीसरा पार्टिकल है, उसका मास है m3, चौथा है, उसका मास है m4. तो ये एक सिस्टम कहलाएगा. यहां पर दिस इज अ फोर पार्टिकल सिस्टम because it consists of 4 particles. So हम ऐसे कहेंगे, collection of large number of particles which can mutually interact with each other. Which can mutually interact with each other. Interact with each other. Which can mutually interact with each other is called system. Mutual interaction means these particles, they exert forces on one another. That means particle of mass m1 exerts force on particle of mass m2, and particle of mass m2 exerts force on mass of a particle of mass m1. Similarly, particle of mass m2 exerts a force on particle of mass m4, and particle of mass m4 exerts force on a particle of mass m2 dash dash and dash. Then we can say collection of large number of particles. When we collect large number of particles which interact each other, which mutually interact each other, then that collection of large number of particles interacting mutually with each other, that's called as a system. Now, there are 2 kinds of forces. Number 1 is known as internal forces. Internal forces. Internal forces क्या होते हैं? Forces exerted by these particles of medium on one another are called internal forces. एक सिस्टम पे 2 किस्म के फोर्सेस एक्ट हो सकते हैं. नंबर 1 इंटरनल फोर्सेस, नंबर 2 एक्सटर्नल फोर्स. इंटरनल फोर्स सिस्टम में क्या होता है? The forces which the particles of system exert on each other, these forces are called as internal forces. These forces, they occur in pairs, and these forces are equal and opposite forces. Hence the net effect is that what happens, these mutual forces, these internal forces, they cancel each other because they are equal and opposite. For example, force exerted by a particle of mass m1 on mass m2 is equal and opposite to the force exerted by particle of mass m2 on a particle of mass m1. Therefore, as per Newton's third law of motion, these forces, they will ultimately cancel each other. So internal forces are those forces which are exerted by the particles of system on each other. Forces exerted by the particles of a system on each other are called internal forces. Forces exerted by the particles of a system on each other are called internal forces. ये forces जो है, they are responsible for holding the particles
inside the system. These internal forces, they are responsible for holding the particles inside the system. Now, the last term is external forces. External force, वो फोर्स जो इस सिस्टम को मैं किसी आउटसाइड एजेंसी से लगाऊंगा, that force is called as external force. Force exerted on this system by some external means, that force is called as external force. What is that called as? External force. जो इस सिस्टम पे मैं फोर्स किसी आउटसाइड एजेंसी से लगाऊंगा, उस फोर्स को मैं कहूंगा क्या फोर्स? क्या कहूंगा? एक्सटर्नल फोर्स. अब मैं आगे जाऊंगा. The first topic I will start in this chapter, that is center of mass. Center of mass. The first question which I will discuss today in this rotational motion, that is center of mass. Center of mass. Center of mass. Very, very important question. Center of mass is very, very important question. Let us discuss this center of mass. See here. Suppose we have a system here. This system is made up of large number of particles. Say this is a particle of mass m1, this is a particle of mass m2, this is a particle of mass m3, this is a particle of mass m4, this is a particle of mass m5, dash dash dash, this is the particle of mass mm. We have a system. This system consists of n number of particles having masses m1, m2, m3, m4, m5, dash 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 mm. Suppose inside this system we have a point, say this point. Suppose we will assume that the whole mass of this system is concentrated, acts on this point. Suppose जो इस system में ये point है, suppose इस system का सारा mass जो है, that is concentrated at this point. And suppose this point will have same type of translatory motion as that of the system as a whole. Then this point is then called center of mass of a system. तो center of mass of a system क्या होता है? System में एक point, जिस point पे हम कहेंगे कि इस system का सारा mass concentrate हुआ है, such that जो ये पॉइंट है, जिस पॉइंट पे सिस्टम का सारा मास कंसंट्रेट हुआ है, इस पॉइंट को सेम टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन है एज दैट ऑफ ए सिस्टम एज होल, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास. हम ऐसे कहेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम और ए बॉडी इज डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द सिस्टम is supposed to be concentrated, such that this point will have same type of translatory motion as that of the system as a whole. Then this point is called as what point? Center of mass. तो जैसे आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या कहते हैं आप? बॉडी में वो पॉइंट, जैसे हम ये बॉडी है, इस बॉडी में वो पॉइंट, जिस बॉडी में जिस पॉइंट पे इस बॉडी का सारा वेट एक्ट होता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेंटर ऑफ ग्रेविटी is a point inside a body or a system where the whole weight of the body is supposed to act. Similarly, center of mass एक सिस्टम में एक पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हम कहेंगे कि इस सिस्टम का सारा मास एक्ट हुआ है, सारा मास कंसंट्रेट हुआ है, such that अगर हम इस पॉइंट पे फोर्सेस लगाएंगे तो this point will have same type of translatory motion as that of a system as a whole. Then this point is called as what? Center of mass. So what is the center of mass? Center of mass of a system or a body is a point inside a body, or we can say is a point where the entire mass of the system is supposed to be act. ठीक है ना? Such that this point has a same type of translatory motion as that of a system as a whole. ठीक है ना? So this was the definition of a center of mass. Now here we will derive the expression for center of mass of a two-particle system. Expression
for position vector, expression for position vector of a center of mass of two particle system. Today we will derive the expression for position vector of center of mass of a two particle system. Suppose यहां पर हमारे पास टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है which consists of two axes, x-axis and y-axis, which are mutually perpendicular to each other. Suppose हम एक सिस्टम लेंगे जिस सिस्टम में हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि मेरे पास मैंने लिया है टू पार्टिकल सिस्टम. टू पार्टिकल सिस्टम वो पार्टिकल सिस्टम होता है जिसमें कितने पार्टिकल्स हैं? दो पार्टिकल्स. Suppose we have a two particle system. Suppose this system consists of two particles, one having a mass m1 and another having a mass m2. Suppose these two particles, they are located at points A and B. This is point AB. Here we have a particle of mass m1. This is point B. Here we have a particle of mass m2. Suppose these two particles, they are located at points A and B, having position vectors r1 and r2 with respect to origin O. ये देखो बेटा, मैंने टू पार्टिकल सिस्टम लिया which consists of two particles of masses m1 and m2. We have a two particle system consisting of two particles of masses m1 and m2, which are located at points A and B in a two-dimensional Cartesian coordinate system, and these 2 points, they have the position vectors r1 and r2 with respect to origin O. Suppose C is the position of center of mass. यहाँ पर मैंने C लिया. C जो है, this is the position of center of mass. Suppose this position of this center of mass has a position vector RCM with respect to origin O. With respect to origin O. मैंने दो पार्टिकल सिस्टम लिया. एक पार्टिकल का मास m1 है, दूसरे का m2 है. उनके जो पोजीशन वेक्टर्स है वो है r1 एंड r2 विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन O. उसके बाद मैंने बोला सपोज C जो है ये है पोजीशन ऑफ व्हाट? सेंटर ऑफ मास हैविंग पोजीशन वेक्टर rcm विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन O. सपोज v1 एंड v2 जो है they are the velocities of particles at any instant of time respectively. At any instant of time respectively. सपोज जो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो पार्टिकल A है जिसका मास m1 है, इसकी वेलोसिटी है v1. जो पार्टिकल ऑफ मास m2 है, इसकी वेलोसिटी है v2. आपको पता है वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो हम यहां v1 लिखेंगे. दिस विल बी इक्वल टू dr1 डिवाइडेड बाय dt. v1 जो होगा दिस विल बी इक्वल टू dr1 डिवाइडेड बाय dt, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ r1 विद रेस्पेक्ट टू टाइम. इसी तरह जो v2 होगा वो होगा बराबर dr2 डिवाइडेड बाय dt. लेट अस कॉल दिस इक्वेशन फर्स्ट. पार्टिकल ऑफ मास m1 जो है उसकी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मैंने ले ली v1 और इसकी वेलोसिटी ले ली v2. तो v1 होगा dr1 डिवाइडेड बाय dt, तो v2 होगा dr2 डिवाइडेड बाय dt. सपोज f1 जो है दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स acting on particle of mass m1 और f2 जो है this is the external force acting on particle of mass m2. ठीक है. what is f1? शाबाश. f1 जो है this is external force acting on particle of mass m1. external force acting on particle of mass m1. F2 जो है वो मैंने लिया, क्या लिया? शाबाश. एक्सटर्नल फोर्स. शाबाश, आप नहीं बताते हो. एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल ऑफ मास m2. एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल ऑफ मास m2.
जो पार्टिकल ऑफ मास m1 है इस पे मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया F1, जो पार्टिकल ऑफ मास m2 है इस पे मैंने एक्सटर्नल फोर्स क्या लगाया F2। नाउ आपको मैंने पता है, आपको मैंने बोला है these particles of system जो है they exert internal forces on each other. Suppose F12 vector F12, suppose this is the internal force exerted by a particle of mass m2 on a particle of mass m1. Similarly F21 जो है suppose this is the internal force जो particle of mass m1 ने किस पे exert किया, particle of mass m2 पे। हम यहां लिखेंगे F12 क्या है, फोर्स exerted on particle of mass m1, particle of mass m1 by mass m2. F12 is the force exerted on particle of mass m1 by particle of mass m2. Similarly F21 जो है this is the force exerted on particle of mass m2, particle of mass m2 by particle of mass m1। तो पार्टिकल ऑफ मास m1 जो है इस पे दो फोर्सेस एक्ट हुए। कौन कौन फोर्स, F1 और F12। F1 जो है वो एक्सटर्नल फोर्स जिस पे एक्ट हो गया, F12 है इस पे वो फोर्स जिसने किसने एक्सर्ट किया, M2 ने। इसी तरह पार्टिकल ऑफ मास M2 जो है इस पे दो फोर्सेस एक्ट हुए, एक फोर्स किसने एक्सर्ट किया, एक फोर्स तो एक्सटर्नल फोर्स है, दूसरा फोर्स है जो पार्टिकल ऑफ मास M1 ने एक्सर्ट किया। तो therefore total force acting on particle of mass m1 will be equal to F1 plus F12। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m2 वो किसके बराबर होगा, F2 प्लस F21। ठीक है, मैं यहां ऐसे भी लिखूंगा, सपोज P1 जो है वो है मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1। सपोज जो पार्टिकल ऑफ मास m1 है इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो लूंगा मैं P1। तो P1 जो होगा ये होगा m1v1 प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है ना, तो P1 होगा बराबर किसके बराबर, शाबाश, m1v1। ठीक है। P2 क्या लूंगा मैं, शाबाश, P2 लूंगा मैं मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m2। तो P2 भी होगा किसके बराबर, m2v2। ठीक है, P2 किसका मोमेंटम लिया, शाबाश, पार्टिकल ऑफ मास m2। तो P2 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू m2v2। ठीक है ना, पार्टिकल ए की क्या वेलोसिटी है, v1, मास क्या है m1, इसका मोमेंटम क्या होगा m1v1। पार्टिकल b की मास क्या है m2, वेलोसिटी क्या है v2, तो मोमेंटम क्या है m2v2। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाऊंगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेट मी अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हियर, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहां पर मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा दूंगा। देखो, एज पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है ना, क्या कहता है, टोटल फोर्स acting on a particle is equal to rate of change of linear momentum of a particle, rate of change of linear momentum of a particle। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। यानी जो F होता है वो होता है dp डिवाइडेड बाय dt। मैं वही करूंगा यहां इस्तेमाल। Therefore आपका जो आपका पार्टिकल ऑफ मास m1 है इस पे टोटल फोर्स कितना एक्ट होता है, F1 प्लस F12। ठीक है ना, Therefore F1 प्लस F12 यानी ये है टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल ऑफ मास m1। दिस विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1। व्हाट इज मोमेंटम, P1। दिस विल बी इक्वल टू dp1 डिवाइडेड बाय dt।
dp1 डिवाइडेड बाई dt, है ना बेटा। तो ये होगा F1 प्लस F12 इज इक्वल टू dp1 डिवाइडेड बाई dt। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m1 इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m1। मगर p1 किसके बराबर है? m1 v1। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, दिस एम्प्लाइज F1 प्लस F2 इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ शाबाश m1 v1, d बाई dt ऑफ m1 v1, ठीक है ना। सिमिलरली टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल ऑफ मास m2 क्या है? F2 एक्सटर्नल फोर्स है, F21 क्या है? इंटरनल फोर्स। दिस विल बी इक्वल टू F2 प्लस F21, ठीक है ना। दैट विल बी इक्वल टू शाबाश d बाई dt ऑफ शाबाश m2 v2, ठीक है ना। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m2 will be equal to rate of change of momentum of particle of mass m2, that will be dp2 divided by dt। मगर p2 किसके बराबर है? m2 v2। we will call this equation first and this equation second। अब हम क्या काम करेंगे? इन दो इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे? एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, जरा बेटा क्या निकलेगा आपको? शाबाश, LHS अलग ऐड हो जाएंगे, RHS अलग ऐड हो जाएंगे। दिस इज F1 प्लस F12 शाबाश प्लस F2 प्लस F21 प्लस F21 इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ शाबाश m1 v1 प्लस शाबाश प्लस d बाई dt ऑफ क्या है? शाबाश m2 v2। ये है F1 प्लस F12 प्लस F2 प्लस F21 इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ m1 v1 प्लस d बाई dt ऑफ m2 v2। देखो कैसे लिखेंगे हम इसको? पहले F1 लिखेंगे, उसके बाद F2 लिखेंगे। हम ऐसे लिखेंगे F1 प्लस F2 शाबाश प्लस F12 शाबाश प्लस F21 इज इक्वल टू, यहां d बाई dt कॉमन लेंगे, d बाई dt जो है वो कॉमन लेंगे, ये बनेगा d बाई dt ऑफ अंदर क्या रहेगा? शाबाश m1 v1 शाबाश प्लस m2 v2, ठीक है। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ जो F12 है ये है इंटरनल फोर्स exerted by particle of mass m2 on particle of mass m1। जो F21 है यह है इंटरनल फोर्स exerted by particle of mass m1 on particle of mass m2 as per Newton's third law of motion। ये फोर्सेस जो होंगे ये होंगे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ठीक है ना। नाउ as per Newton's third law of motion, as per Newton's third law of motion, ये जो F12 होगा, F12 ये होगा बराबर माइनस F21, यानी फोर्स exerted by one body, one particle on the other particle is equal in magnitude but opposite in direction to the force exerted by the second particle on the first particle। इसको यहां लेंगे तो ये बनेगा F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा बेटा? इसको यहां ले लो, ये क्या बनेगा? शाबाश F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0, यानी ये दो फोर्सेस जो है दे कैंसल ईच अदर। देयरफॉर आपकी इक्वेशन थर्ड जो है वो क्या रह गई? शाबाश F1 प्लस F2 प्लस F12 और F21 के बदले क्या लिखूंगा? 0। तो वहां रहेगा खाली F1 प्लस F2। तो किसके बराबर होगा? d by dt of m1 v1 plus m2 v2। तो हमें क्या निकलेगा? शाबाश, therefore we get F1 plus F2 is equal to शाबाश d by dt of, बोलो शाबाश, d by dt of शाबाश m1 v1 plus m2 v2। very nice। now F1 plus F2 जो है, this is the total internal force acting on the system। this is the total external force acting on the system। What is F1? F1 is the external force acting on a particle of mass m1। F2 is the external force acting on a particle of mass m2। It means जो ये F1 plus F2 है, this is the total external force acting on the system। But F1 plus F2 जो है, this is equal to F, what is F? Total external force acting on the system। total external force acting on the system।
F1 प्लस F2 जो है इसको मैंने F के बराबर रखा, तो F जो है दिस इज द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए 2 पार्टिकल सिस्टम। देयरफॉर ये इक्वेशन क्या बनेगी, शाबाश, देयरफॉर अबव इक्वेशन बिकम्स F21 प्लस F1 प्लस F2 के बदले क्या लिखूंगा मैं, F इज इक्वल टू शाबाश d बाई dt ऑफ शाबाश M1 V1 प्लस शाबाश M2 V2, d बाई dt ऑफ M1 V1 प्लस M2 V2। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में मैंने निकाला है V1 किसके बराबर निकाला था उधर, V1 था dr1 डिवाइडेड बाई dt, ठीक है ना। V2 था किसके बराबर, dr2 डिवाइडेड बाई dt। मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये क्या बनेगा, वेक्टर F इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ शाबाश, यहां क्या रहेगा शाबाश M1 dr1 डिवाइडेड बाई dt, ठीक है, प्लस शाबाश d प्लस M2 dr2 डिवाइडेड बाई dt, dr2 डिवाइडेड बाई dt। जो ये M1 और M2 है ये कांस्टेंट्स है, इनको हम डिफरेंशियल के अंदर भी ले सकते हैं। हम ऐसे लिखेंगे वेक्टर F इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ, ऐसे लिखेंगे d बाई dt ऑफ M1 R1, ठीक है, प्लस d बाई dt ऑफ शाबाश क्या लिखेंगे शाबाश M2 R2। चूंकि मास जो है वो कांस्टेंट है यहां पर, तो हम इसको डिफरेंशियल के अंदर भी ले सकते हैं, बाहर भी ले सकते हैं। तो मैंने M1 को अंदर ले लिया, दिस इज d बाई dt ऑफ M1 R1 प्लस d बाई dt ऑफ M2 R2। d बाई dt को बाहर निकालेंगे, जब d बाई dt को आप बाहर निकालोगे तो d बाई dt जो आपका है ये क्या बनेगा शाबाश, ये क्या बनेगा, ये बनेगा F इज इक्वल टू शाबाश, क्या बनेगा F इज इक्वल टू d बाई dt बाहर निकला, d इंटू डी क्या हो गया d स्क्वायर, तो ये बनेगा d2 डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर इंटू शाबाश M1 R1 प्लस M2 R2। मैंने d बाई dt जो है वो मैंने बाहर निकाला, d इंटू डी हो गया d स्क्वायर डिवाइडेड बाई dt इंटू dt हो गया dt स्क्वायर, तो मुझे निकला F इज इक्वल टू dt स्क्वायर d2 डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर M1 R1 प्लस M2 R2। इसको मैं नाम रखूंगा इक्वेशन नंबर 4। अब मैं क्या करूंगा यहां पर, जो ये इक्वेशन 4 है इसका जो RHS है, RHS में मल्टीप्लाई भी करूंगा मैं M1 प्लस M2 से, डिवाइड भी करूंगा M1 प्लस M2 से। डिवाइडिंग RHS ऑफ इक्वेशन, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग, ऐसे लिखेंगे हम, मल्टीप्लाइंग and dividing RHS of equation 4 by M1 plus M2। M1 plus M2 है टोटल मास ऑफ सिस्टम, क्योंकि एक पार्टिकल का मास M1 है, दूसरा क्या है M2, M1 plus M2 क्या है टोटल मास ऑफ सिस्टम। तो व्हाट वी गेट, हमें निकलेगा F इज इक्वल टू d2 डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर इंटू शाबाश, पहले ऐसे लिखेंगे F इज इक्वल टू M1 M2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज M1 इंटू M2 शाबाश d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई d2 डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर इंटू शाबाश M1 R1 प्लस शाबाश M2 R2। तो डिवाइड भी करेंगे, इसको डिवाइड भी करेंगे M1 प्लस M2 से, हमने मल्टीप्लाई भी किया M1 प्लस M2 से, डिवाइड भी किया M1 प्लस M2 से। ये M1 प्लस M2 जो डिनोमिनेटर में है इसको डिफरेंशियल के अंदर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बनेगा F इज इक्वल टू शाबाश M1 प्लस M2, ठीक है, M1 प्लस M2 d2 डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर इंटू शाबाश M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। इस इक्वेशन को मैं रखूंगा इक्वेशन नंबर 5। मैंने क्या काम किया, जो इक्वेशन 4 है इसके RHS को मैंने मल्टीप्लाई भी M1 प्लस M2 से किया और डिवाइड भी M1 प्लस M2 से किया। बाद में जो डिनोमिनेटर में M1 M2 है उसको डिफरेंशियल के अंदर ले लिया, तो मुझे बन गया F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 d2 डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब हम क्या काम करेंगे, लेट अस नाउ एज्यूम दैट M जो है M, दिस इज
टोटल मास ऑफ सिस्टम। यहां लिखूंगा लेट m जो है, m है टोटल मास ऑफ सिस्टम। m मैं क्या लूंगा? टोटल मास ऑफ सिस्टम। तो ये m किसके बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2। सपोज m जो है वो इस सिस्टम का टोटल मास है, वो किसके बराबर है? m1 प्लस m2। अब हम यहां सपोज करेंगे कि जो ये टोटल मास ऑफ सिस्टम है, दिस इज कंसंट्रेटेड एट पॉइंट C, यानी ये सारा मास जो है इस सिस्टम का m1 प्लस m2 होगा। सपोज दिस m1 प्लस m2 विच इज इक्वल टू कैपिटल M, सपोज दिस इज कंसंट्रेटेड एट पॉइंट C, सपोज ये प्रेजेंट है एट पॉइंट C। और मैं क्या काम करूंगा? सपोज जो है एक्सटर्नल फोर्स, टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो सिस्टम पे मैंने अप्लाई किया वो है F। सपोज दिस एक्सटर्नल फोर्स F जो है इट इज डायरेक्टली अप्लाइड एट पॉइंट C। Let us assume that this whole mass of system is concentrated at point C and the external force is directly applied at point C. ठीक है ना? Then as per Newton's second law of motion, this F will be equal to m. What is m? M is the total mass of system into, ये total mass of system कहां पर मैंने रखा? Point C पे, ठीक है ना? Into ACM. What is ACM? ACM जो है this is acceleration of center of mass। क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है F इज इक्वल टू ma, तो मैंने टोटल मास ऑफ सिस्टम जो है इसको मैंने रखा पॉइंट C पे, और एक्सटर्नल फोर्स जो है उसको मैंने डायरेक्टली लगाया किस पॉइंट पे? पॉइंट C पे, यानी सेंटर ऑफ मास पे। देन एज पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F जो होगा दिस विल बी इक्वल टू m इनटू ACM। वायर जो ACM है, वायर ACM जो है दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये एक्सेलरेशन होगी d2 divided by dt square into d2 divided by dt square RCM। चूंकि अब हमें पता है जो एक्सेलरेशन है वो है डबल डेरिवेटिव, दिस इज d2r divided by dt। r के बदले सेंटर ऑफ मास का क्या है? पोजीशन वेक्टर RCM। तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा d2 divided by dt square RCM। तो m किसके बराबर है? m1 प्लस m2। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? इसको रखेंगे हम 6, therefore 6 becomes, तो 6 क्या बनेगी? therefore 6 becomes, जो इक्वेशन 6 है वो क्या बनेगी हमें? शाबाश। F इज इक्वल टू m के बदले क्या लिखेंगे? m1 प्लस m2। दिस इज m1 प्लस m2 इंटू ACM के बदले क्या लिखेंगे? शाबाश d2, शाबाश d2 डिवाइडेड बाय d2 RCM डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर, यानी d2 डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर RCM। ठीक है ना? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ RCM। इसको हम रखेंगे नाम इक्वेशन नंबर 7। क्या किया हमने यहां पर? जो टोटल मास ऑफ सिस्टम है, मैंने बोला कि सपोज दैट इज कंसंट्रेटेड एट पॉइंट C, और मैंने क्या काम किया? मैंने जो एक्सटर्नल फोर्स है वो डायरेक्टली लगाया कहां पर? पॉइंट C पे। तो एज पर न्यूटन सेकंड लॉ F जो होगा वो होगा m इनटू ACM। ACM जो है वो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू d2 डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर RCM। तो इसका मतलब है यहां पर ACM और m का वैल्यू दे दिया। अब मैं क्या काम करूंगा? जो इक्वेशन 7 और 6, इक्वेशन 7 और इक्वेशन 5 जो है, लेट मी कंपेयर दीज टू इक्वेशन। कंपेयरिंग इक्वेशन 5th एंड 7th एंड 5th, मैं करूंगा यहां पर कंपेयरिंग इक्वेशन 7 एंड 5। देखो बच्चों, 7 का RHS क्या है? F। 5 का RHS क्या है? F। 7 में क्या है? m1 प्लस m2। 5 में क्या है? m1 प्लस m2। 7 में क्या है? RCM। यहां पर क्या है? RCM के बदले m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। वी गेट RCM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसको रखेंगे नाम इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8 जब मैंने कंपेयर किया इक्वेशन 5 और इक्वेशन 7 को, तो मुझे निकला जो RCM है वो है बराबर m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए 2 पार्टिकल सिस्टम।
तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम किसके बराबर है? शाबाश, m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. दिस m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 m2 जो है, इसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज. व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? दिस इज कॉल्ड एज वेटेड एवरेज. वेटेड एवरेज ऑफ पोजीशन वेक्टर्स. वेटेड एवरेज ऑफ position vectors of two particles. Weighted average of position vectors of two particles. तो इसका मतलब है जो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास होता, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, वो होता है बराबर वेटेड एवरेज ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है किसके बराबर? वेटेड एवरेज ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम. दिस कंप्लीट्स टुडेज लेक्चर.